Hello student, standard 7, subject maths, chapter 12, algebraic expressions. Open your textbook, page number 231. Coefficients. We have learned how to write a terms as a product of factor. One of these factor may be numerical and the other algebraic. They contain variables. The numerical factor is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term. It is also said to the coefficient of the rest of the term. Thus in 5xy, 5 is the coefficient of the term, जो 5 numerical है इसलिए. It is also the coefficient of xy in the term 10xy. Z. So 10 is the coefficient of x, y, z in the terms minus 7 x square y square. So minus 3 is the coefficient of x square y square. When the coefficient of the term is plus 1, it is usually omitted. For example, 1x is written as x, उसे x भी only लिख सकते हैं. 1x square y square is written as x square y square and so on. Also the coefficient minus 1 है is indicated only by the minus sign. Thus minus 1x ऐसे लिख सकते हैं या written as minus x भी लिख सकते हैं. Minus 1x square y square is written as minus x square y square and so on. Sometimes word coefficient is used in more general way. Thus we say that in the terms 5xy, 5 is the coefficient of xy, x is the coefficient of 5y and y is the coefficient of 5x. In 10xy square, so 10 is the coefficient of xy square, x is the coefficient of 10y square and y square is the coefficient of 10x. Thus in the more general way, a coefficient may be either a numerical factor or an algebraic factor or a product of two or more factors. It is said to be the coefficient of the product of the remaining factor. तो यहाँ भी ट्राई दिस वाला है, वो आपको ट्राई करना है, ठीक है. Example 1 है, identify in the following expression terms which are not constant, give their numerical coefficient. Example 1 है, identify in the following expressions terms which are not constant, give their numerical coefficients. xy plus 4, 13 minus x square, 13 minus y plus 5y square, 4p square q minus 3pq square plus 5. So देखो यहाँ पे टेबल है, सॉल्यूशन में क्या है, एक्सप्रेशन है, टर्म्स है विच इज़ नॉट कंस्टेंट और नंबरिकल कोफिशेंट है. तो फर्स्ट क्या है, एक्स वाई प्लस 4 एक्सप्रेशन है, तो उसमें टर्म्स क्या आ गया, विच इज़ नॉट ए कंस्टेंट, तो वो टर्म्स है एक्स वाई. और नंबरिकल कोफिशेंट मतलब एक्स वाई से पहले क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ओके. उसके बाद है 13 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे टर्म्स कौन सा है, विच इज़ नॉट अ कंस्टेंट, माइनस वाई स्क्वायर. अब वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या आएगा माइनस 1. 13 माइनस वाई प्लस 5y स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस वाई और दूसरा है 5y स्क्वायर, तो माइनस वाई में आगे कुछ नहीं है मतलब माइनस 1 है और 5y स्क्वायर में आगे 5 है, उसमें 5. 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें है 4p स्क्वायर क्यू और दूसरा है माइनस 3pq स्क्वायर. सो इसमें तो नंबरिकल है 4 और दूसरे में है माइनस 3. उसके बाद एग्जाम्पल 2 है, ये चैप्टर इजी है बच्चों. व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 4x माइनस 3y, 8 माइनस एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वेयर, x माइनस वाई, 2z माइनस 5xz. तो पहले हम ए करते हैं, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है. इन ईच ऑफ एक्सप्रेशन we look for the terms with x as a factor. The remaining part of that terms is the coefficient of x. तो देखो एक्सप्रेशन 4x माइनस 3y है, तो उसमें टर्म विथ फैक्टर्स x, जिसके साथ x है वो लेना है टर्म्स. तो 4x लेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है 4 है.
देन 8 माइनस एक्स प्लस वाई, तो एक्स वाला है माइनस एक्स और उसके आगे क्या है -1, वाई स्क्वेयर एक्स माइनस वाई, तो इसमें एक्स वाला है वाई स्क्वेयर एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा वाई स्क्वेयर। 2z माइनस 5xz, तो यहाँ पे आएगा एक्स वाला टर्म्स विथ फैक्टर x माइनस 5xz और x के साथ क्या है -5 और z। वोट आर द कोएफिशिएंट ऑफ y इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वैसे ही y का है 4x माइनस 3y, तो -3y और -3y के साथ है 8 प्लस yz, तो yz टर्म्स y वाला है विथ द फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ y z, yz स्क्वेयर प्लस 5, तो कौन सा आएगा टर्म विथ फैक्टर yz स्क्वेयर और कोएफिशिएंट z स्क्वेयर, my प्लस m, तो क्या आएगा my और कोएफिशिएंट ऑफ y आएगा m, तो है ना इजी। उसके बाद लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर दे आर लाइक टर्म्स, व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, लुक एट द टर्म्स 2xy एंड 5xy, जो उसके साथ xy और xy दोनों है 2xy 5xy, ओनली क्या है नंबर चेंज है, पीछे xy तो सेम ही है। द फैक्टर 2xy 2x एंड y, द फैक्टर ऑफ 5xy 5x एंड y, दस देयर अलजेब्रिक फैक्टर आर द सेम, ये सेम है एंड दे आर लाइक टर्म्स। ऑन द अदर हैंड द 2xy एंड -3x, -3, तो -3 में क्या है 3x में y नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। सिमिलरली द टर्म्स 2xy एंड 4, तो ये भी इसमें xy है उसमें xy नहीं है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप आर लाइक टर्म्स टुगेदर फ्रॉम द फॉलोइंग, ये ट्राई दिस वाला आपको करना है। उसके बाद है मोनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स, ट्रिनोमाइल्स एंड पोलिनोमाइल्स। एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमाइल्स, वन टर्म है उसे कहते हैं मोनोमाइल्स। फॉर एग्जाम्पल 7xy माइनस 5m 3z स्क्वेयर 4 etc. एन एक्सप्रेशन विच कंटेन टू लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमाइल्स, जिसके टू टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई m माइनस 5m n प्लस 4m a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर आर बाइनोमाइल्स। The expression 10pq is not a binomial, this is a monomials. It is a monomials. The expression a plus b plus 3 is not a binomial क्योंकि इसमें 3 terms है, contain 3 terms. An expression which contain 3 terms is called trinomials. जो जिसके 3 terms है उसे क्या कहेंगे trinomials। कौन से x प्लस वाई प्लस 7 a b प्लस a प्लस b 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2, वैसे ये सभी ट्रिनोमाइल्स है। द एक्सप्रेशन a प्लस b प्लस 5 इज हाउएवर नॉट अ ट्रिनोमाइल्स, इट कंटेन 4 टर्म्स एंड नॉट 3, इसमें 4 है 3 नहीं है। द एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस 5 इज नॉट अ ट्रिनोमाइल्स एज द टर्म्स x एंड 5x आर लाइक टर्म्स, क्योंकि इसमें x एंड 5x है वो लाइक टर्म्स है, इसलिए ये ट्रिनोमाइल्स नहीं है। इन जनरल एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पोलिनोमाइल्स, वन से ज़्यादा टर्म्स है उसमें क्या कहेंगे पोलिनोमाइल्स। दस मोनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स एंड ट्रिनोमाइल्स आर कॉल्ड पोलिनोमाइल्स। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल 3 देखो। State with reason which of the following pair of terms are like terms, which are unlike terms। कौन से like terms है और कौन से unlike terms है। 7x 12y और y ये different है तो ये unlike terms है। 15 तो 15x माइनस 21x तो ये दोनों में x है, ये सेम है तो ये like terms है। -4ab -4a और b 7ab भी लिख सकते हैं, ab इज इक्वल टू ba होता है तो ये सेम है इसीलिए ये लाइक टर्म्स है। 3xy और 3x ये डिफरेंट है, दूसरे में y नहीं है इसलिए डिफरेंट है, वो अनलाइक टर्म्स है। 6xy स्क्वायर और 9x स्क्वायर y, तो इसका क्या होता है 6xy
9xxy ये डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है. द वेरिएबल इज द इन द टू टर्म्स मैच बट देयर पावर डू नॉट मैच. पी क्यू स्क्वेयर माइनस 4pq स्क्वेयर 1pq माइनस 4pq ये सेम है तो ये लाइक टर्म्स है. mn स्क्वेयर 10mm mnn और 10mn तो ये डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है. फॉलोइंग सिंपल स्टेप विल हेल्प यू टू डिसाइड वेदर द गिवन टर्म्स आर लाइक और अनलाइक टर्म. इग्नोर द नंबरिकल कोएफिशिएंट, नंबरिकल जो है वो उसे इग्नोर करो. कॉन्सेंट्रेट ऑन द अलजेब्रिक पार्ट ऑफ द टर्म्स. चेक द वेरिएबल्स इन द टर्म्स, दे मस्ट बी द सेम. वेरिएबल्स है वो सेम होने चाहिए. नेक्स्ट चेक द पावर ऑफ ईच, उसके बाद उसके पावर चेक करो, मतलब जो स्क्वायर आते हैं क्यूब आता है वो. नेक्स्ट चेक द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इन द टर्म्स, दे मस्ट बी द सेम, वो भी सेम होने चाहिए. नोट दैट in deciding like terms two things do not matter: the numerical coefficient of the terms and second the order in which the variable are multiplied in the terms. Okay, so आपको पता चल गया like terms और unlike terms कैसे होते हैं. क्या चेक करना होता है, उसके पावर चेक करने होते हैं और उसके वेरिएबल्स जो है वो चेक करने होते हैं. ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे. ओके, थैंक यू.